Hello everyone, how are you all? Today in this video I am going to tell you how to create a Google form. If you are a teacher in any school, college or in any institute, so this will be very helpful for you all. So if you want to create an online question paper, online quizzes or any form application, then this video is going to be very helpful. Let's start this video. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं और आप अपने छात्रों के लिए कोई ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर या ऑनलाइन क्विज बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So in first we have to open a web browser from our computer. So this is, as you can see here, this is your Google Chrome web browser. So I am going to open this. सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर से एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है। मेरे पास Google Chrome वेब ब्राउज़र है, सो जिसको मैं now you will see such type of web browser will open in front of you and here you have to type google.com. तो जैसे ही वेब ब्राउज़र आपके सामने ओपन होगा आपको एड्रेस बार में जाकर google.com को टाइप करना है और अपने कंप्यूटर से कंट्रोल एंटर की प्रेस करना है। तो गूगल सर्च इंजन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। As you can see here, Google search engine is open now and in this search bar you have to write here Google form. I am writing here Google form. आपको सर्च बॉक्स पे जाके Google form टाइप करना है और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। In a new window, in a new page, such type of options will come here where you have to click on to first one, which is www.google.com forms about. So in this we are going to click on to this. जैसे आप टाइप करेंगे Google Forms, तो सबसे पहले आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा जिसमें लिखा होगा Google Forms। इसका एड्रेस होगा www.google.com forms about। तो इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। After that, a new window will open here where there will be two options for personal and business. We can create here two types of forms for personal use or for business use. But as you all know that for business purpose, it will provide you security features and some other control features. So for which it will ask you to pay some money for that. And this personal form creation is for free for everyone. जैसे ही न्यू पेज ओपन होगा गूगल फॉर्म्स का, यहाँ पे आप देखेंगे कि दो विंडो ओपन हो रही है। इसमें पहला रहेगा आपका पर्सनल फॉर्म के लिए और दूसरा रहेगा बिजनेस फॉर्म्स के लिए। ये बिजनेस फॉर्म के लिए आपको स्पेशल सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड की जाएंगी जिसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। बट ये जो पर्सनल फॉर्म है, इस पर्सनल फॉर्म को हम फ्री में क्रिएट कर सकते हैं जिसके लिए कोई चार्ज हमें पे नहीं करना पड़ेगा। सो वी हैव टू क्लिक ऑन टू दिस फर्स्ट वन वेयर इट इज रिटन गो टू गूगल फॉर्म्स। सो हमें इस पे पर्सनल फॉर्म पे जहाँ पे गूगल गो टू गूगल फॉर्म्स लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। When we click onto this, a new window will open like this. जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया फॉर्म और नया पेज ओपन होगा जो कुछ इस प्रकार का होगा। As you can see here in this window, in just below this pen, you can see here many forms are written here. These forms I have created before, so these are just showing in my window. And in the top pen you can see here, this is your blank form. These are contact informations, RSVP, party invite, t-shirt, sign up forms. These are the forms that are having the templates. Means if we choose these any one options, we will have some options that will be pre-built by the system, but we have to create a new one, so we have to click on this blank option. जैसे ही आपके सामने गूगल की फॉर्म विंडो ओपन होगी तो इस नीचे वाले पैन में देखेंगे आप, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म एप्लीकेशन आपके सामने आएंगे। सिर्फ वही एप्लीकेशन फॉर्म सामने आएंगे जो आपने पहले क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप पहली बार फॉर्म क्रिएट करें तो ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई नहीं देंगे, बट ये 4-5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जहाँ पे आपको फर्स्ट वन दिखेगा यहाँ पे जो है जिसमें आप ब्लैंक या न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और ये 4 ऑप्शन आपको टेम्पलेट फॉर्म्स के फॉर्म में दिखाई देंगे। इनमें से आपको कोई यूज़ नहीं करना है बिकॉज आपको यहाँ पे अपना ही एक नया फॉर्म क्रिएट करना है। आपको सबसे पहले से ब्लैंक फॉर्म पे जाके इसमें क्लिक करना है। When we click onto that option, automatically such type of new window will open here, which will have their untitled form, form descriptions, and these type of things or all options will come here. जैसे ही आप क्रिएट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की कुछ विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमें अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। सो इन फर्स्ट वेयर इट इज रिटन अनटाइटल्ड फॉर्म, so in place of this untitled form you can write your subject name, what subjects question paper or quiz you are going to be created. इस अनटाइटल्ड फॉर्म के प्लेस पर आपको अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आप बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर जनरल स्टडीज
चलिए एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म डिस्क्रिप्शंस में, एंड हियर वी कैन राइट वेयर इट इज रिटन फॉर्म डिस्क्रिप्शन लाइक PA1 एग्जाम, दिस इज फॉर पर्सनल असेसमेंट एग्जाम नंबर 1। आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन जहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम का नाम दे सकते हैं, लाइक PA1, SA1, हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, कुछ भी एग्जाम का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड आफ्टर राइटिंग हियर लाइक दिस यू हैव टू कम टू डाउन। जैसे यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट का नाम और एग्जाम का नाम लिख देंगे, आपको उसके नीचे देखना है यहाँ पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे हम क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, बट इन फर्स्ट व्हेन द फॉर्म विल बी क्रिएटेड, स्टूडेंट विल राइट देयर ओन नेम, देयर ओन रोल नंबर और देयर ओन सेक्शन। सो हियर वी हैव टू राइट ऑल दीज थ्री थिंग्स। सबसे पहले जैसे ही कोई स्टूडेंट्स फॉर्म ओपन करेगा, उसके सामने कुछ ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसमें वो अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन लिखेगा। सो हेयर वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ अनटाइटल्ड क्वेश्चन लाइक नेम। इसलिए आपको अनटाइटल्ड क्वेश्चन की जगह आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में नेम लिखना है। और एंड at the right bottom you can see here this is written here required, so you have to click onto this, so this name option will be required for the students। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की जगह आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, इसके बाद आप राइट बॉटम पे देखेंगे जहाँ पर रिक्वायर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो दिस ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड फॉर द स्टूडेंट दैट विल बी मैंडेटरी टू राइट देयर नेम, एंड हेयर वी विल सिलेक्ट शॉर्ट आंसर बिकॉज नेम विल बी ऑल टाइम फॉर इन शॉर्ट आंसर। और यहाँ आपको शॉर्ट आंसर ही सिलेक्ट करना है बिकॉज नेम हमेशा शॉर्ट आंसर में ही आते हैं। एंड इफ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू क्वेश्चन और न्यू ऑप्शन, अगर आपको दूसरा नया ऑप्शन क्रिएट करना है जिसमें आपको स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, सो हियर यू कैन सी एट द टॉप दिस इज रिटन प्लस साइन, हियर इट इज रिटन ऐड क्वेश्चन, सो वी विल क्लिक ऑन टू दिस। जो राइट साइड में जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है। सो इन फ्रंट ऑफ यू अ न्यू सेम विंडो विल बी ओपन। आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप लिख सकते हैं रोल number, and same as that we have done before for the name, we have to do here roll number for short answers, and here we have to click on to this required sign। जैसे ही आपने पहले ऑप्शन में नेम के लिए किया हुआ था, वैसे ही आपको रोल नंबर के लिए भी करना है, और आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना है। एज यू कैन सी हियर इन दीज ऑप्शंस नंबर इज रिटन ऑटोमेटिकली, you can select here text, you can select here number, anything you can select here, but we know that for roll numbers we want here numbers, and for name we want here short answer and text। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें नंबर्स लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। जिस तरह का आपको ऑप्शंस रिक्वायर्ड हो वैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। रोल नंबर के लिए आपको नंबर चाहिए तो आपको यहाँ पे नंबर क्लिक करना है, एंड फॉर द नेम, एंड नेम के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए था, तो यहाँ पे टेक्स्ट पहले से सिलेक्टेड है। नाउ वी आर गोइंग टू अगेन क्लिक ऑन टू दिस प्लस साइन। जब हम फिर से प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। नाउ इन दिस वीडियो यू वांट टू नो द सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, सो यू विल राइट हियर सेक्शन। नई विंडो में अगर आपको बच्चे का सेक्शन चाहिए है तो आपको यहाँ पे सेक्शन लिखना पड़ेगा। द सेक्शन कुड बी लाइक A, B, C, D, any section student could have, so we have to give choice to fill the option to the student। सेक्शन A, B, C, D फॉर्म में हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में देना पड़ेगा। एज यू कैन सी हियर दिस इज ऑलरेडी रिटन हियर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पे सिलेक्टेड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो वी हैव टू गिव हियर ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस फॉर द सेक्शन, इसलिए हमें यहाँ पे चारों ऑप्शंस बच्चों के लिए देना है। इन प्लेस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन वी हैव टू राइट हियर A, देन इन सेकंड ऑप्शन वी हैव टू राइट हियर B, देन इन थर्ड ऑप्शन वी हैव टू राइट हियर C, एंड फोर्थ ऑप्शन वी हैव टू राइट हियर D। इन चारों ऑप्शन में पहले ऑप्शन में आप यहाँ पे A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, और चौथे नंबर के ऑप्शन पे आप यहाँ पे D लिख देंगे, और यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड फील्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे 3 ऑप्शंस आपके लिए रिक्वायर्ड हो गए, जिसके लिए स्टूडेंट्स ये तीनों ऑप्शन फिल करना मैंडेटरी रहेगा। Now we are coming to create questions for this question paper that could be of multiple choice questions or any type of questions। So for example I have to create here 4 questions, so I'll click on to this plus sign 4 times। अब आपको अपना क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। एन एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 4 क्वेश्चंस बच्चों के लिए देना है तो आपको 4 बार इस प्लस साइन पे क्लिक करना पड़ेगा। सो आपके सामने 4 न्यू विंडो ओपन हो जाएंगी। These are 4 windows in front of you, so you have to click on to first one। Here, if I am writing a question like which is an output device, मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज एन आउटपुट डिवाइस, और ये आप अपना क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में रखना चाहते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, पैराग्राफ हो, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चेक बॉक्सेस क्वेश्चन हो,
किसी भी तरह क्वेश्चन आपको जो देना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. Any type of questions you can select from here, these the options which are given. So I want here to create multiple choice question. So I'll click onto this multiple choice. Now you have to write here first option, that is mouse, and you have to write in second option like keyboard. In third option we can write here printer, and in fourth option we can write here स्कैनर. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका माउस, सेकंड है कीबोर्ड, थर्ड है आपका प्रिंटर एंड फोर्थ है आपका स्कैनर. इसी तरह से हम 3 और क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे. आफ्टर दिस वी हैव टू क्लिक ऑन टू दिस रिक्वायर्ड साइन ऑप्शन, और एक क्वेश्चंस लिखने के बाद आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड साइन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे हम टाइप करेंगे अपना नया क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. हियर वी हैव टू टाइप आवर सेकंड क्वेश्चन. So let's assume our second question is 25 into 6 plus 2 minus 6 into 5, and we can write here the options. हम यहाँ पे options दे सकते हैं. First option could be 142, second option could be 132, third option could be 112, and fourth option could be here 122. हम में 4 ऑप्शन दे सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आंसर इसमें से करेक्ट होगा. एंड वी कैन अगेन क्लिक ऑन टू रिक्वायर्ड साइन. हमें फिर से रिक्वायर्ड साइन पे क्लिक कर देना है. इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्रिएट करेंगे. सो दीज 2 क्वेश्चंस वी हैव क्रिएटेड इन अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. नाउ वी आर क्रिएटिंग अ थर्ड क्वेश्चन वेयर वी विल इंसर्ट पिक्चर्स इन देयर चॉइस. इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हम बच्चों को मल्टीपल चॉइस में पिक्चर्स प्रोवाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन, who is the Prime Minister of India? This is my question. ये आपका क्वेश्चन कि who is the Prime Minister of India? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन है? यू कैन सी हियर व्हेन वी क्लिक ऑन टू दिस फर्स्ट ऑप्शन. जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है वेयर इट इज रिटन फॉर एड इमेज. सो वी विल क्लिक ऑन टू दिस एड इमेज. हमें इस एड इमेज ऑप्शन पे क्लिक करना है. अ न्यू विंडो विल ओपन. एक नई विंडो ओपन होगी. फ्रॉम वेयर वी हैव टू जस्ट ब्राउज द इमेज. दैट इमेज वी हैव सेव्ड इन आवर कंप्यूटर. सो हियर दीज 4 इमेजेस आई हैव सेव्ड बिफोर. सो यू कैन सिलेक्ट ईच इमेज वन बाय वन. आप यहाँ से एक एक करके सारी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वन वी आर सिलेक्टिंग फॉर अमित साय. सो आई हैव सिलेक्टेड दिस. नाउ यू कैन सी द इमेज इज बीइंग अपलोडेड. जैसे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे आपकी इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है. वैसे ही आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है. यू क्लिक ऑन टू सेकंड ऑप्शन. अगेन वी विल क्लिक ऑन टू दिस एड इमेज ऑप्शंस. तो अगेन सेम विंडो विल ओपन. फिर से वही विंडो ओपन होगी और आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है. दैट आई एम डूइंग हियर. आई क्लिक ऑन टू ब्राउज, select second image, and this image is being again uploading. Now click on to third option. जैसे हम तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, select new image. This is your third image being uploaded. Now click on to fourth option, select a new image. और लास्ट ऑप्शन में भी हम एक इमेज इसमें डाल देंगे. So these 4 images are uploaded as you can see here. So students can select any one image according to the question. चारों इमेज आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दी 4 ऑप्शंस में, और छात्र क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर सिलेक्ट कर सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फोर्थ क्वेश्चन दैट विल बी कॉल्ड शॉर्ट आंसर. तब हम यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन क्रिएट करेंगे जो हमारा शॉर्ट आंसर के फॉर्म में रहेगा. सो वी हैव टू क्लिक ऑन टू दिस ऑप्शन वेयर क्वेश्चन इज रिटन, एंड वी विल टाइप हियर अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज इंटरनेट. यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज इंटरनेट, and this question is of your short answer. So we have to click on to this drop down arrow. You can see here short answer option is here that you have to select. हम जैसे ही ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास शॉर्ट आंसर नाम का ऑप्शन होगा जिसको हमें सिलेक्ट करना है. नाउ यू कैन सी दिस शॉर्ट आंसर इज कमिंग हियर, एंड नो एनी MCQ लाइक दैट ऑप्शंस आर जस्ट बिलो टू द क्वेश्चन. जैसे हम शॉर्ट आंसर क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे आपके MCQ वाले ऑप्शंस जो होते हैं वो यहाँ उनकी जगह पे शॉर्ट आंसर टेक्स्ट नाम का एक ऑप्शन है जहाँ पे स्टूडेंट्स टेक्स्ट के फॉर्म में अपना आंसर देंगे. एंड अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस रिक्वायर्ड ऑप्शन. इस रिक्वायर्ड ऑप्शन को आपको फिर से क्लिक कर देना है. नाउ वी हैव क्रिएटेड ऑल 4 क्वेश्चंस दैट वी वांटेड टू क्रिएट. हमने चारों क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं. नाउ on the top you can see here if we want to create this question paper in a form of quiz,
और वी वांट टू क्रिएट अ क्वेश्चन पेपर लाइक दिस फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है तो टॉप पे आपको देखिए यहाँ पे सेटिंग नाम का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यू टू क्लिक ऑन दिस सेटिंग ऑप्शन सो सच टाइप ऑफ न्यू विंडो विल ओपन। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने किस तरह की विंडो या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज जनरल, सेकंड इज प्रेजेंटेशन एंड थर्ड इज क्विजेस। पहला जनरल, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा क्विजेस नाम से। फर्स्ट इज जनरल, सेकंड इज प्रेजेंटेशन, थर्ड इज क्विजेस। और ये ऑप्शंस जो नीचे लिखे हैं उनको वन बाय वन रीड करके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। एंड यू हैव टू चूज दीज ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल इट इज रिटन हियर कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। इट मीन्स दैट व्हेन द स्टूडेंट विल submit their form, so he has to or she has to type their email address that will be mandatory when we check this box. जैसे आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। जैसे ही कोई स्टूडेंट्स अपना फॉर्म सबमिट करेगा उस समय पर उससे उसकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी और जो उसको फिल करना अनिवार्य होगा। सो दिस वी हैव टू क्लिक। नाउ नेक्स्ट इज लिमिट टू वन रेस्पॉन्स, मीन्स one students can submit only one response if we check this box। इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक ही बार फॉर्म, क्वेश्चन पेपर या फॉर्म फिल करने की परमिशन रहेगी, दोबारा वो उस फॉर्म को फिर से फिल नहीं कर पाएगा। सो अगेन यू टू क्लिक ऑन दिस, चेक दिस बॉक्स। नाउ कम टू द बॉटम, एडिट आफ्टर सबमिट। इफ यू वांट टू प्रोवाइड परमिशंस टू द स्टूडेंट्स that he can edit their form that he has submitted, so you can provide from here, but we don't want this, so we have not to select this one। अगर आपको बच्चों को एडिट करने का, फॉर्म सबमिट करने के बाद, क्वेश्चन पेपर सबमिट करने के बाद एडिट करने का ऑप्शन नहीं देना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट इसको नहीं करेंगे। एंड सेकेंड इज सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अपना टेक्स्ट रेस्पॉन्स और चार्ट आफ्टर सबमिशन देख ना पाएँ, सबमिट करने के बाद देख ना पाएँ, तो भी आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो बच्चा एडिट भी कर पाएगा इस ऑप्शन से अपना क्वेश्चन पेपर, और इस ऑप्शन से अपने स्कोर चार्ट के फॉर्म में और टेक्स्ट के फॉर्म में भी देख सकता है। सो हियर वी हैव नॉट टू सिलेक्ट बोथ दीज थिंग्स, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज प्रेजेंटेशन। अब हमें प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। सो यू कैन सी हियर 2 ऑप्शंस आर कमिंग, शो प्रोग्रेस बार। Yes, we can click onto this here first, and second is here shuffle question order, this one we also have to click। जैसे ही इन दोनों ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे वैसे फर्स्ट जो है आपका शो प्रोग्रेस बार आफ्टर सबमिशन, जैसे फॉर्म सबमिट होगा उसके बाद वो प्रोग्रेस बार आपके सामने दिखाई देगा बच्चे का। दूसरा है सफल क्वेश्चन ऑर्डर, मीन्स जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो इसका मतलब जो क्वेश्चन पेपर अलग अलग बच्चों के लिए जाएगा या अलग अलग फॉर्म अलग अलग ईमेल एड्रेसेस के लिए जो ओपन होगा उसमें सारे क्वेश्चंस ऊपर नीचे रैंडम ऑर्डर में सफल हो सकते हैं। तो दीज टू वी हैव टू सिलेक्ट, तो इन दोनों को हमें सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट वन इज हियर क्विजेस। अगला जो क्विजेस है, हियर वी हैव टू क्लिक दिस वन वेयर मेक दिस अ क्विज इज रिटन। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ कि हमें इस फॉर्म को क्विज बनाना है, सो इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। When we select this, now these options will open। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ये ऑप्शंस आपके सामने ऊपर हो जाएंगे। Where first one is written here release grade immediately after each submission। जैसे ही सबमिट होगा वैसे ही ग्रेड बच्चे के सामने शो हो जाएगा। Student can see their response what he has done in that question paper। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो बच्चा तुरंत ही अपना सबमिशन के बाद अपना स्कोर देख सकता है अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो। बट वी डोंट वांट टू शो द रिजल्ट और देयर स्कोर टू द स्टूडेंट्स। अगर हम बच्चों को उसका स्कोर दिखाना नहीं है, सो वी कैन सिलेक्ट हियर दिस ऑप्शन वेयर इट इज रिटन लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। मतलब यहाँ हुआ कि बच्चों को रेस्पॉन्स बाद में दिखाई देगा जब हम उसको खुद ही चेक करेंगे, अपने आप ही उसके सामने कोई भी स्कोर कार्ड नहीं आएगा। सो वी हैव टू क्लिक ऑन टू दिस एंड नाउ वी हैव टू सेव दीज ऑप्शंस। इसके बाद हमें सेव ऑप्शंस पे क्लिक करना है, तो अगेन हम दोबारा उसी अपने फॉर्म पेज पे वापस आ जाएंगे। नाउ एज वी हैव सेट द सेटिंग्स फ्रॉम हियर, नाउ वी आर गोइंग टू सेट द मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। जैसे ही आपने सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है, अब इसके बाद हम हर एक क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। उसको कैसे करेंगे? सो वी हैव टू क्लिक हियर इन एनी क्वेश्चन anywhere into that dialog box, so such type of things will come in front of you। तो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन डायलॉग बॉक्स में कहीं पे भी क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी
and here you can see what is written here, answer key at the bottom of that dialog box that you have to select. और इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर की, इसको आपको सिलेक्ट करना है. So such type of window will open in front of you where we can select points or marks from here. जैसे ही आपके सामने इस तरह की नई विंडो ओपन हो जाएगी, नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन का मार्क्स देना है. For example, the marks of this question is 1, so we have to write here or we have to select one point. And what is the correct answer of this question that we can also select from here for our checking process. इस विंडो में हम यहाँ से इस क्वेश्चन का मार्क्स सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी करेक्ट आंसर है उसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि है आपका प्रिंटर. After that, if you want to write something about some description about your question and about the answer, some feedback about the answer, so you can write from this option. अगर आपको इस करेक्ट आंसर का फीडबैक बच्चों को प्रोवाइड करना है कि ये आंसर सही है तो क्यों सही है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट यहाँ से करेंगे. जैसे क्लिक करेंगे, such type of options will come here. What is written here? Correct answer, that is incorrect answer. So we have to select the correct answer. हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर पे क्लिक करना है एंड हियर वी हैव टू राइट करेक्ट आंसर, दैट इज प्रिंटर. हमें यहाँ पे प्रिंटर नाम दे सकते हैं. ये ऑप्शंस ऑप्शनल है, ये ऑप्शन ऑप्शनल है. अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐड फीडबैक अपने आंसर का दे सकते हैं. दिस ऑप्शन इज ऑप्शनल. इफ यू वांट टू गिव द फीडबैक टू द स्टूडेंट, सो यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन. इसके बाद हमें सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे सेव हो जाएगा. और यू कैन सी हियर फीडबैक फॉर करेक्ट आंसर, दैट इज प्रिंटर विल बी रिटन हियर. जो हमने प्रिंटर फीडबैक दिया हुआ था वैसे ही आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा. सेम थिंग वी हैव टू डू इन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग. एक्चुअली द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 122. सो वी विल क्लिक एनीवेयर इन दिस डायलॉग बॉक्स. आपको फिर से वैसे किसी भी जगह पे इस डायलॉग बॉक्स में ओपन करना है, क्लिक करना है. आपको फिर से किसी भी जगह इस डायलॉग बॉक्स में क्लिक करना है और आपको यहाँ से आंसर की सिलेक्ट करना है. When you select the answer key, same window will come. Again give the marks. Again click on to right option. Again write the answer here, that is correct answer here 122. फिर से हम वैसे ही प्रोसेस करेंगे करेक्ट आंसर लिखने के लिए. और आप देखेंगे यहाँ पर हमने सेकंड मार्क्स यहाँ प्रोवाइड किया है. What marks we are going to provide to the questions? So total marks will be shown here, that you can see 2 questions we have selected and 2 marks we have provided for the 2 questions. हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके 2 लिखा हुआ है यहाँ पे दिख जाएगा. नाउ क्लिक ऑन टू डन ऑप्शन. नाउ टू द नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन अगेन, दैट इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. क्लिक एनीवेयर. यहाँ पे भी हम अगले क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लिक करेंगे एंड नीचे यहाँ लिखा हुआ है आंसर की, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे. सो अगेन गिव द मार्क्स 1 एंड सिलेक्ट द राइट आंसर. फिर से हम यहाँ पे मार्क्स प्रोवाइड करेंगे और राइट आंसर पे क्लिक करेंगे. एंड इफ वी वांट, सो वी कैन अगेन क्लिक ऑन टू फीडबैक. अगर हम फीडबैक देना चाहते हैं फिर से हम यहाँ पे करेक्ट आंसर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आंसर शो कर देंगे. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिस्टर नरेंद्र मोदी. आप यहाँ पे करेक्ट आंसर में जो भी फीडबैक देना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं और आपको फिर यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है. नाउ यू सी this has been selected and feedback will be written in a format like this. Now come to the next question, that is what is internet, and this is of short answer type question. अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. उसमें भी विंडो में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आंसर की आप दिख जाएगी. here you can also see the answer key. Click on to this. Now such type of window will open here. Now you can give the points. If I want to give the points for the short answer like 2 points, so I can give here 2 points. And here is the option like mark all other answers, or we can give the right answer or the feedback. But for short answers we cannot give the feedback because students can also write in their own language in own order. यहाँ पे हमें फीडबैक बच्चों को इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए हमें नहीं देना है, क्योंकि बच्चा अपने खुद से भी इस शॉर्ट आंसर को अपनी ही लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकता है. Then we have to click on to done option. So we have selected all 4 questions, create a question paper. हमने यहाँ पे चारों क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए हैं जो कि हमें क्वेश्चन पेपर के लिए बनाने थे. Here we have created our question paper. हमने अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बना लिया है.
Now if we want to show image of our institution, of our school or of our college, so we have to go to customize option, that is on the top. अगर आपको यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज का नाम शो करना है या कोई इमेज शो करनी है, तो इसके लिए आपको कस्टमाइज थीम ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। वेयर यू टू क्लिक ऑन टू दिस। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। फ्रॉम वेयर यू कैन चेंज द थीम ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, जहाँ से आप अपने क्वेश्चन पेपर की थीम या कलर चेंज कर सकते हैं। लेट अज्यूम आई एम क्लिकिंग ऑन टू दिस ग्रीन साइन, सो यू कैन सी बॉर्डर इज बीइंग ग्रीन। जैसे आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपकी बॉर्डर यहाँ पर उसी कलर की हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस ग्रीन वन, तो दिस वी हैव सिलेक्टेड। हमने यहाँ पे ग्रीन कलर की बॉर्डर या ग्रीन कलर की थीम सिलेक्ट कर ली है। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन टू चूज इमेज ऑप्शन। सो फ्रॉम हियर जैसे हम चूज इमेज पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फ्रॉम देयर वी हैव टू क्लिक ऑन टू अपलोड एंड वी गो टू ऑन ब्राउज ऑप्शन, जहाँ पे हमें ब्राउज ऑप्शन पे जाना है। एंड वी हैव टू सिलेक्ट अ लोगो ऑफ आवर स्कूल दैट इमेज वी हैव स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर। अब हमें यहाँ से अपने स्कूल कॉलेज का कोई भी एक लोगो सेलेक्ट कर लेना है, जिस पर हमें क्लिक करना है ओपन बटन पे। When we click on to open button, now you can see the image is being uploaded onto this form and here we have to click on to done। इसके बाद हमें यहाँ पे done ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। Now you can see image is uploaded in just above your question paper। आप देखेंगे कि आपके इंस्टीट्यूशन या कॉलेज की इमेज आपके सामने फॉर्म के जस्ट ऊपर यहाँ पे शो होने लगी है। And here you can also change the font style of your text that you have used in your question paper। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर का टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके। एनी ऑप्शन व्हेन यू सिलेक्ट सच टाइप ऑफ टेक्स्ट विल बी चेंज, बट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ओनली बेसिक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि इजीली समझ में आ जाता है। नाउ वी हैव टू क्लोज दिस। तो दिस फॉर्म इज ऑटोमेटिकली सेव्ड इन योर गूगल फॉर्म, इन योर गूगल ड्राइव। अब ये फॉर्म ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है आपकी गूगल ड्राइव में। जो भी आप वर्क करते हैं गूगल फॉर्म में, ये अपने आप ही सारी एक्टिविटीज़ को सेव कर लेता है। And if you want to see the quiz, how this quiz will look like when students will open this quiz, और अगर आपको देखना है कि आपकी क्विज कैसी दिखाई देगी जब स्टूडेंट्स इस क्विज को फॉर्म को ओपन करेंगे, देन यू कैन क्लिक ऑन टू दिस प्रीव्यू ऑप्शन दैट इज ऑन टॉप। तब आपको ये प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक ऑन टू दिस ऑप्शन, जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे a न्यू विंडो विल ओपन हियर। एक नई विंडो आएगी जिसमें आपको आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट आपको यहाँ से दिख जाएगा। Now you can fill the form same as the students will fill। So here the student will write their own email ID, here the students will write their roll number, and next they will write their section, and these questions will start from here। So they will give the answers one by one, and after filling all the answers here, internet is a network of networks। If students fill this form like this, and when they will just click on to submit button, then they will see after submission such type of window where your response has been recorded. Such type of message will be shown to the students। Now we are coming back to our form, and here you can see at the top this is written here total points 5, because we have created this online quiz of 5 marks। So such type of forms display will come in front of students। इस तरह की विंडो आपके स्टूडेंट्स को दिखाई देगी। After the submission, if you want to check the responses, how many students have been submit this form, if you want to check that, then you have to click on to responses। अगर आपको चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने आपके फॉर्म को सबमिट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे responses नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर कर देख सकते हैं कि how many students have been submit here, कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सबमिट किया हुआ है। So scores are here। So the students who is having this email ID have scored 3 marks, this email ID has scored 1 mark, and this email ID again has scored 3 marks। Such type of automatic score will be in front of you when you click on to this responses option। जैसे आप response option पे क्लिक करेंगे, इस तरह के सारे email IDs स्टूडेंट्स के आपके सामने होंगे और जिसके सामने स्कोर लिखा हुआ है, जिसमें से आउट ऑफ 5 दे इन लोगों ने 3, 1 और 3 मार्क्स अचीव किए हुए हैं। Their graphs will be shown like that। You can see the graphs here of the students। यहाँ से आपको स्टूडेंट्स के ग्राफ भी दिख जाएंगे, किस क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स अचीव किए हुए हैं। सो दिस वाज द क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन गूगल फॉर्म और ऑनलाइन क्विज, और वी कैन क्रिएट हियर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर।